और जब वो मार्केट में रेगुलर चेंज होते रहता है ऑन द बेसिस ऑफ डेली बेसिस, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इट्स कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, then it is known as a flexible exchange rate system. Is that clear? Yes sir. और एक तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में तो फ्रीडम है, लेकिन कुछ कंट्री जो चालाक कंट्री हैं वो क्या करते हैं, कुछ करेंसी बचा के अपने देश में रिजर्व करके रख लेते हैं, और according to the situation they release the currency or they buy the currency, as the China has done in 2014-15. USA is also doing that. In late 70s Russia has done that. So sometime the country which has a hold over the international trade do that, they control the exchange by making a reserve in their kitty so they can influence the rate, and that's why it is also known as a dirty floating, जानबूझ के किया जाना जिससे इंटरनेशनल मार्केट में उसे एडवांटेज मिल जाए, and it can be done only by those countries which have a large trade surplus. हर कंट्री नहीं कर सकता, and that's why few country has advantage in the foreign exchange rate and other don't have. Is that तो clear? सर इंडिया भी इंडिया अभी भी नहीं कर सकता, इंडिया अभी भी डेफिसिट में है। Aryan, can you read this slide? Yes sir. Meanings of fixed and flexible rates. If government decides the conversion rate is called fixed exchange rate, such a rate does not vary with changes in demand and supply of foreign currency. It is also called pegged exchange rate. Meaning of flexible exchange rate. If the market forces determine the conversion rate, it is called flexible or floating exchange rate. This rate varies with changes in demand and supply of foreign currency. Okay. So what does it mean, Yuvraj? Can you explain it? The fixed exchange rate is fixed by the government, whereas the flexible exchange rate is fixed by the market forces, that is demand and supply of foreign currencies. Right. Fixed exchange rate is also called as pegged exchange rate, and flexible exchange rate is known as floating exchange rate. Very good. And when both combine together, that is called managed floating or dirty floating. See, this is the meaning of managed floating rate. Sumit, can you read this? Sumit Burma. Anyway, Rishabh, can you read this? Rishabh, As are a you there? buyer or seller. Hello. Yes. Sir, आवाज आ रही है? अब आ रही है. Okay. It is called managed because the central bank tries to influence the rate by entering the market as a bulk buyer or seller. When the central bank finds the floating rate is too high, it starts selling foreign exchange from its reserve to bring down the rate. When it finds the rates are too low, then they start buying foreign currencies to raise the rate. The central bank does it in the interest of the exporters and importers. It is also called dirty floating rate. पहले भी समझा चुका हूं, मतलब ये वही कंट्री कर सकता है, इसमें सरप्लस ट्रेड है। जब हमें दिखता है कि हमारा डाउनफॉल हो रहा है तो हम मार्केट से बाई करके अपने करेंसी की डिमांड बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को लगता है कि हमारी करेंसी कम हो रही है, वो भी बाई करने लगते हैं तो रेट बढ़ जाता है, और इससे हमारे एक्सपोर्टर को फायदा हो जाता है। और जब दिखता है कि भैया हमारा रेट हमारे लिए इंपोर्ट करना है, हम अपनी करेंसी को बेचने लगते हैं, तो व्हेन द ज्यादा बिकता है, शेयर मार्केट की तरह कोई भी चीज जब ज्यादा बिकता है तो उसका रेट फॉल होना शुरू हो जाता है। अब उस कंडीशन पे फिर हमारे इंपोर्टर, अगर यूएस में सर डॉलर के रेट अगर ज्यादा हैं अभी,
फॉर एग्जाम्पल, हम्म, तो सर अभी हम नहीं खरीदेंगे और जब रेट गिर जाएंगे हम तब खरीदेंगे और जब ज्यादा हो जाएंगे तब हम बेच देंगे। यस। ठीक है सर। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस चैप्टर कि आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों है और फॉरेन करेंसी आपके पास आता कहां से है, मतलब डिमांड क्यों चाहिए एंड सप्लाई कहां से आता है। आर्यन, कैन यू रीड दिस? Yes sir. Sources of demand and supply of foreign exchange. Demand sources: imports, foreign transfer payment, investment abroad, tourism abroad, foreign exchange speculation. Supply sources: exports, foreign investments, foreign tourists to India, factor income from abroad, loans and grants from RO. ओके, सर ROW क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, राइट। तो एक चीज बताओ कि डिमांड अगर आप ज्यादा करोगे तो आपके करेंसी के रेट पे क्या असर होगा? सर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। राइट। और अगर सप्लाई ज्यादा होगा हमारी मैंने हमारी कंट्री में दूसरे कंट्री के करेंसी का, तो क्या होगा? सर हमारी कंट्री में दूसरे की करेंसी ज्यादा आएगी। जैसे भारत में एफडीआई ज्यादा आ रहा है, फॉरेन के लोग भारत में पैसे लगा रहे हैं, तो हमारी एक्सचेंज पे क्या असर होगा? सर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर। गुड। दैट इज द की ऑफ दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर का की यही चीज है, डिमांड से क्या असर होगा, सप्लाई से क्या असर होगा। अब देखो ये सामने है, आस्था, हु इज दिस? ये लास्ट किसका? यस। और शुभांगी? Yes, sir. यस। शुभांगी, कैन यू रीड दिस डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? सर आपकी वॉइस कट हो रही है, मुझे समझ मैंने नहीं कहा आ रहा। ये स्लाइड रीड करना और मुझे समझाओ। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपने इसे पढ़ा है। Okay, sir. Demand curve of foreign exchange. Demand curve of foreign exchange slope downwards due to inverse relationship between demand for foreign exchange and foreign exchange rate. जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सर की फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब अपोजिट होता है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम घट रहा होता है। यस, मतलब अगर डॉलर की कीमत ज्यादा होगी, 70 रुपए होगी, तो आप ज्यादा डिमांड करोगे या कम करोगे? कम। और जब डॉलर की रेट 40 होगी, मतलब एक डॉलर में 40 रुपीज में ही $1 बाय कर सकते हो, तब कितना डिमांड करोगे? ज्यादा। ज्यादा। एंड दैट रिलेशनशिप इज शोन थ्रू द डायग्राम। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब आता है ये की पॉइंट है, व्हाई देयर इज अ राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। आर्यन, कैन यू रीड दिस? Yes sir. Reasons for rise in demand for foreign currency. First, when price of a foreign currency falls, imports from that foreign country become cheaper. So imports increase and hence the demand for foreign currency rises. For example, if price of $1 falls from 60 to 55, then imports from USA will increase as American goods will become relatively cheaper. It will raise the demand for US dollars. Second, when a foreign currency becomes cheaper in terms of the domestic currency, it promotes tourism to that country. As a result, demand for foreign currency rises. Third, when price of a foreign currency falls, its demand rises as more people want to make gains from speculative activities. इज दैट क्लियर? इसकी मीनिंग Yes. मुझे समझाओगे युवराज?
हाँ सर, एक मिनट। हाँ तो when the price of the domestic currency falls, so the goods for the particular current country become cheaper, so the imports exports of the country rises, and vice versa. Hmm. Or second, if the currency becomes cheaper, so it also promotes tourism. अच्छा, And युवराज जस्ट अ सेकंड, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं इसी पे कि अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट पैंडेमिक के बाद कुछ पॉलिसी लेके आई है बजट में कि पूरे भारत में टूरिज्म को प्रमोट कैसे करें, मतलब हाउ टू कनेक्ट रिलीजियस पार्ट ऑफ द कंट्री, हाउ टू कनेक्ट that is called sea beaches of the country, and how to beautify the country and increase the tourism in the country. How it will impact the foreign reserve or foreign currency of the country? क्या असर होगा इससे? सर अगर टूरिज्म इंक्रीज होता है हमारी कंट्री में तो सर हमारी कंट्री की जो रुपीस की वैल्यू है वो एप्रिशिएट होगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो मतलब हमारी कंट्री में बाहर से पैसा ज्यादा आएगा तो हम बाहर के गुड्स जो हैं वो ज्यादा खरीद भी सकते हैं। मतलब हमारी कंट्री फिर इंपोर्ट्स बढ़ा सकती है बाहर से, क्योंकि फिर हमारे लिए उनकी करेंसी की वैल्यू चीप अपने आप ही हो जाएगी जब हमारे पास उन्हीं का पैसा आ जाएगा। तो गुड। अब मैं इसी को देखो, अब यही चीज हमारे पास अगर इंडियन इकोनॉमी में जाएं, जब हम देखते हैं चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस कोविड-19 के बाद एक सिचुएशन को रिलेट करके देखो। इफ योगा जो हमारी 22 जून को मनता है ना, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, यस सर। अब जिस दिन से योगा डे आया पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, योगा ट्रेनर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। And as more and more India promotes its connectivity of Char Dham or the Banaras corridor with Ayodhya and all these different places, either it is a Meenakshi temple or it is a Konark temple or the different temple of country, what happened? Within the country, because we have the huge population, so people start visiting within the domestic country. At the same time, when we people are making visit on the site, it's so to the world, this place are the most visited, and that create an impression in the mind of the rest of the world that they want to visit this place. Suddenly what happened? There is a more flow of money into our country. So even all these things are related with the development of infrastructure of the country also. Is that clear? Yes, sir. Now coming to the supply side. Aryan, just read this curve and explain to all. Supply curve of foreign exchange. Supply curve of foreign exchange slope downwards due to positive relationship between supply for foreign exchange and foreign exchange rate. In figure 11.2, supply of foreign exchange, US dollar, and rate of foreign exchange have been shown on the x-axis and y-axis respectively. The positively sloped supply curve SS shows that supply of foreign exchange rises from OQ1 to OQ2 when the exchange rate rises from OR1 to OR2. सर इसमें यही बताया है कि सर सप्लाई कर्व जो है ये इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। मतलब सप्लाई सर उस चीज की तब बढ़ जाएगी जब सर वो उसके रेट गिर जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे सॉरी, जब जैसे यूएस डॉलर के अगर रेट बढ़ गए और हमारे पास उसके रिजर्व्स पड़े हैं तो हम उसको बेच सकते हैं, तो मार्केट में उसकी उस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। और सिमिलरली सर वाइस वर्सा इंडिया में भी ऐसे ही होगा। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, जैसा क्वेश्चन बन सकता है जो पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मैं कहा कि अगर मान लो कि डॉलर माने $1 के बदले 70 रुपीज के बदले 80 रुपीज मिले हमें, तो हमारे देश के एक्सपोर्टर को फायदा है या इंपोर्टर को फायदा है? सर एक्सपोर्टर को। क्यों?
क्योंकि सर वो सामान बेच रहा है तो उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, पर गुड, इम्पोर्टर को चीज महंगी पड़ रही है। राइट। अब देखो ये इसलिए बताया, अब क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ देगा कि ड्यू टू राइज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी व्हाट विल हैपन टू द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, क्वेश्चन रीड करना ध्यान से, तो आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। यस इज दैट क्लियर सर? Yes, यस sir. सर। अब आता है रीजन फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ऋषभ रीड इट। ऋषभ, एनीवे, शुभांगी जस्ट रीड इट। Hello. हाँ सर ऋषभ, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, तब नहीं आ रही थी। अच्छा। शुभांगी जस्ट रीड इट। Yes, sir. Reasons for rise in supply of foreign currency. When the price of foreign currency rises, domestic goods become relatively cheaper. It induces the foreign country to increase their imports from the domestic country. As a result, the supply of foreign currency increases. For example, if price of procuring the USD rises from rupees 55 to rupees 60, then exports of the US will increase because now US will get rupees 60 worth of commodities for the same 1 USD compared to earlier. Earlier they had 55 worth of commodities for the same 1 USD. When price of foreign currency rises, supply of foreign currency will increase as people would want to make speculative gains. They would sell and make a profit. This would cause supply rise. तो क्या समझ में क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट सर। युवराज समझाइए क्या मीनिंग हुआ इसका? सर जब सॉरी 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 दूसरे कंट्री के करेंसी का जो रेट है अगर वो राइज होता है तो फिर डोमेस्टिक गुड्स ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली चीपर हो जाते हैं। तो फॉरेन कंट्री के इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा होते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं सॉरी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं। हाँ और उनके इंपोर्ट्स। राइट, इज दैट क्लियर ऋषभ? आर्यन? Yes, sir. यस सर। सुमित तुम्हारा क्या हो गया, माइक ऑफ है? चलो अब आते हैं सबसे मोस्ट। अब देखो ऑलरेडी हमने बताया कि जो कंज्यूमर है वो क्या सोचता है, राम नाम जपना पराया माल अपना। मतलब कंज्यूमर के केस में हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। प्रोड्यूसर ठीक इसका उल्टा सोचता है। प्रोड्यूसर हमेशा क्या सोचता है, मुख में राम बगल में छुरी, कि जितना ज्यादा काट सकते हो कंज्यूमर को काट लो, मींस हायर प्राइसेस मोर सप्लाई। बट दैट नॉट हैपन एक्चुअली इन द मार्केट। मार्केट में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के आपका इक्विलिब्रियम बनता है या वो रेट डिसाइड होता है जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो द पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स इक्वल, and that is known as the equilibrium price in the market. Is that clear? Yes sir. So I have to explain this graph, or you can
draw in your notebook also. You can do that. Yes, sir. Should I proceed further? Yes, sir. अब देखो, foreign exchange market is only at equilibrium where the demand, market में जो रेट है वो हमेशा equilibrium का ही रेट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट में वो डिमांड और सप्लाई बराबर हो गया. क्योंकि एक्सेस सप्लाई जब होगा तो कॉम्पिटिटर के बीच में इतना कंपटीशन हो जाएगा कि प्राइस अपने आप फॉल हो जाएगा. जब डिमांड ज्यादा होगा तो बायर उसको पुश करेंगे, ज्यादा बाई कर करके उस रेट पे पहुंच जाएंगे. तो एक्चुअली मार्केट ऑलवेज ऑपरेट एट इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि दिस इज अ फ्लेक्सिबल मार्केट, फ्री मार्केट. इस पे फिक्स रेट नहीं है, मार्केट का कोई कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज कंप्लीटली फ्री. तो आज जो भी रेट देखते हैं कि आज $1 की कीमत 74 रुपीज या 75 रुपीज जो भी है, that rate is a equilibrium. Is that clear? Yes, sir. अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो मार्केट में रेट पे क्या असर होगा. क्लास 11th में भी किया हमने. देखो, सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम बना रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है, ई पे, राइट? Yes, sir. अब मान लो डिमांड बढ़ा तो हमेशा राइट हैंड साइड में बढ़ेगा, अपवर्ड, Yes, sir. which making equilibrium at even point. मतलब अगर हम अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने लगेंगे या यूके से ज्यादा खरीदने लगेंगे तो उनकी करेंसी की प्राइस बढ़ जाएगी, 50 के बदले 60 देना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. और अगर हम डिमांड कम करते हैं तो उनकी कीमत घट जाएगी. Yes, sir. अब इसका एक लॉजिकल एग्जांपल समझिए. आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया. इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारे करंट अकाउंट की जो डेफिसिट है, ट्रेड बैलेंस की डेफिसिट, वो निगेटिव में है. और निगेटिव कितना? तो अराउंड 66,000 लाख करोड़ रुपीस का डेफिसिट है. इतनी ज्यादा घाटे में है. इस घाटे को सही करने का एकमात्र तरीका है क्या? कि अगर हम जो फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करें इंडिया में प्रोडक्शन करके. लेस वी बाय, the value of our currency will improve. सर मतलब मेक इन इंडिया वाला कैंपेन ही हो गया. Exactly. Or not only for make in India, so many things are there. Instead of using petroleum car, हम सब कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल, each of us can contribute a lot. अभी जैसे एक डेटा है, अभी इंडिया में 8 लाख करोड़ रुपीस हर साल हम पे करते हैं only for buying of crude oil, कच्चा तेल, पेट्रोलियम from the rest of the world. अगर उसके बदले हम अपनी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, कंप्रेस्ड बायोगैस मतलब काऊ डंग से बने हुए बायोगैस ट्रैक्टर या बसेस में यूज करें, तो क्या होगा? ये 8 लाख करोड़ घट के 4 लाख करोड़ पे आ जाएगा. और जब हम कम डिमांड करेंगे दिनार की, कम डिमांड करेंगे रूबल की, तो नेचुरल है हमारी करेंसी इंप्रूव होगी. अक्सर लोग पूछते हैं कि भैया जब 1945 में पहली बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की गठन हुआ, स्थापना हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तब $1 इज इक्वल टू 1 रुपी था, 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.7 रुपी था. हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, अब आ रही है सर. जैसे सर मान लो सर, जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस जैसे इंडिया जो थी, हेलो बोलो बोलो सर, बोलो. उसमें मतलब सर उसमें इंपोर्ट मतलब जो इंडिया थी वो एक वो ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर थी सर बहुत सारी चीजों की, है ना? नो बेटा,
अगेन अब यहाँ पे मिस्टेक है आपकी, 1947 वाला चैप्टर जो आईडी है वो ध्यान से नहीं पढ़ा, मतलब अभी भी आप, इंडिया एक्सपोर्ट इतना ज्यादा करता था, इंपोर्ट तो सिर्फ यूके से करता था, और थोड़ा सा क्या मशीन्स, उसके उन मशीन की वैल्यू बहुत थी, फिर भी हम इतना ज्यादा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे कि वी आर अ सरप्लस एक्सपोर्टर। अच्छा सर, इंडिया सिर्फ यूके को एक्सपोर्ट करता था? 90% of the trade at the time of independence is with only one country, that is UK. अच्छा, तो सर वो तो सर एक ख्याल से इंपोर्ट ही हो जाएगा, क्योंकि सर वो इंडियन टेरिटरी उस टाइम पे ब्रिटिश टेरिटरी थी। नहीं नहीं, वो अलग कंट्री था, वो कहने को कॉलोनियल था हम, वो कैलकुलेट उसी तरह से होता था कि वो दूसरी कंट्री, हम दूसरी कंट्री हैं। बट सर अगर उस टाइम पे इंडिया अगर एक्सपोर्ट करती तो उनका हमारा इंडियन रुपीस बहुत ज्यादा होता ना सर उस हाँ तो टाइम वन, के उस मुकाबले समय में डॉलर्स में। $1 का टू 1 रुपी था। इंटरनेशनल यूके अमेरिका के साथ ट्रेड ही नहीं होता था, यूके के साथ होता था। यस सर। तो उस समय में डॉलर और पाउंड की वैल्यू 2 रुपए का डिफरेंस था, मतलब 1 पाउंड इक्वल टू 2 रुपीज। जी सर। और अगर वही मैंने बताया कि जितनी ज्यादा फॉरेन की गुड्स हम कम बाई करेंगे उतना हमारा वैल्यू इंप्रूव होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। शुभांगी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये हैंग क्यों हो गया? अब एक टर्म है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब हम गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन कहते हैं, और गवर्नमेंट जब करेंसी की वैल्यू को घटाती है तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। और सेम चीज जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है उसको कहते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, डज डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन आर सेम, गिव रीजन। क्या होगा युवराज? They have the same effect on exports and imports, but they are not the same. Devaluation is take place under flexible system. No, fixed. Whereas Devaluation in a fixed and depreciation in flexible. Sorry. Is that clear, Aryan? सर ये एक बार फिर से बता दो, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन वाला। हाँ, समझ नहीं आया। देखो, डिवैल्यूएशन मतलब $1 की कीमत 60 रुपए से 70 रुपए कर दिया, मतलब हमने अपने करेंसी की वैल्यू को घटा दी। कब? जब ये गवर्नमेंट के हाथ में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है। सर और अगर 60 से हमारी 70 करेंसी की वैल्यू, अपने कैसे, वो तो दूसरी कंट्री ने बढ़ा दी वैल्यू। नहीं, वो हम करते हैं। जब फिक्स एक्सचेंज होता है ना, तो हमारे कंट्री के हाथ में है कि हम $1 के बदले 50 में था, अब ये लगता है कि हमारा करंट अकाउंट बैलेंस बहुत घाटे में है, तो हम क्या करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू को हम घटा देते हैं, 50 से 60 कर देते हैं। तो अब हमारे एक्सपोर्टर को फायदा होगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट करती है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है सर। और वही जब रिवैल्यूएशन, मतलब 60 को एप्रिसिएट करके 50 रुपीज पे ले आए तो रिवैल्यूएशन हो गया। और ये देखो मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन, आर्यन रीड करना जरा। Meaning of revaluation: when government deliberately reducing the price of foreign currency in terms of domestic currency is termed as revaluation of domestic currency. Here imports of domestic currency increase and exports would decrease. Got it? समझ? Yes sir. अब देखो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, यही चीज जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो वहां पे क्या होता है, घटाते हैं। जब मार्केट में घट जाती है हमारी वैल्यू तो डेप्रिसिएशन, बढ़ जाती है तो एप्रिसिएशन। ठीक है सर। सर उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल? हाँ, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इट इज अंडर द मार्केट। ठीक है।
अब देखो काइंड्स ऑफ मार्केट दो तरह का होता है, जस्ट फॉर मीनिंग, ये आपकी इस साल के सिलेबस में नहीं है, यहीं तक था, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग। मीनिंग ऑफ स्पॉट मार्केट मतलब आज जिस रेट पे फॉरेन करेंसी खरीदोगे, अभी चाहिए और आज खरीद लिया, स्पॉट मार्केट। अरे कटा हुआ है सर। हाँ ये कटा हुआ है, जहां तक हमने कर लिया दैट इज इन द सिलेबस। सर मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पूरा कटा हुआ। हाँ ठीक है सर। so if this is clear, यस सर। time is also getting over, so do one thing, prepare your sample paper जो मैंने भेजा है, instead of tomorrow we are meeting on Sunday. सर कौन सा पार्ट कटा हुआ है आपने कहा? ये देखो फॉरेन स्पॉट मार्केट, फॉर मार्केट, ये लेटेस्ट कैरिकुलम के अकॉर्डिंग अब नहीं करना आपको। ये नहीं है? नहीं है। ओ, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो फिर आप लोग सैंपल पेपर करके संडे मिलते हैं हम लोग। संडे सर ऑनलाइन? जो आ सकते हो नोएडा में हो कोचिंग पे तो मोस्ट वेलकम। कितने बजे? आप बताइए कब आ सकते हो? सर वो उस दिन संडे को अकाउंट्स की क्लास भी है ना, हाँ। 10:30 to 12:30। हाँ तो 12:30 के हाँ। बाद मैं कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके यस सर। सर आप शाम में कर सकते हैं, 12:30 मुझे है अकाउंट्स की क्लास। मैं आपका अलग से कर दूंगा, ऑनलाइन कर दूंगा ना आपका। आर्यन का भी तो 12:30 होगा ना, सेम टाइम ही तो है। हाँ नहीं 10:30 से है ना अकाउंट की क्लास। सर एक बार लिखा तो check सर ने, चेक कर आर्यन? लेता हूँ एक बार। हाँ चेक यस करना। सर। सर हमारी तो लेकिन ऑफलाइन बुलाई थी ना वो सर ने, हाँ इसलिए। ऑफलाइन है तो हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूट पे तो ब्लेंडेड लर्निंग की सिस्टम है ना, हमने तो कैमरा लगा रखा है ना, एट अ टाइम बोथ गोइंग टुगेदर, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। हाँ सर हाँ, 12:30 वही है। कहा था सर ने। 12:30 से है ना? यस सर। हाँ तो उसके बाद मैं रख लूंगा, जब आपकी खत्म होगी 2:30 खत्म होगी तो उसके बाद मैं रखूंगा ओके सर। कंटिन्यूएशन में, ठीक है? यस सर। ओके।